Welcome to this solo leveling journey equal to x minus iy. So put it to find the area of this triangle. कितना है 3 plus 1 that is 4. So from A and from B you will get Euler's identity. Well, cost negative. Okay, mod z is always positive. Cube root of unity and then nth root of unity. De Moivre's theorem and later then समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, अपना दिमाग थोड़ा बहुत यूज कीजिए. Hello everyone, welcome to this solo leveling journey. Before going to the next topic, we are about to complete 3 or 4 problems about this modulus, argument, conjugate, etc. Okay, so first one, let's z be a complex number such that mod of z plus z is equal to 3 plus I. Here it's given that equation including equation of z and mod z and z bar etc. जो भी है, आप लोगों को अगर ऐसा इक्वेशन मिलता है, कुछ करने को नहीं है. It just you need to put z is equal to x plus iy or a plus iv and then further proceed. For this question you have to put z is equal to x plus iy and then find mod z, that is root over x square plus y square, and simply solve the equation. Okay, let's do it. So z is equal to x plus iy, so this implies mod of z is equal to root over x square plus y square. Just put it in the equation. You will get root over x square plus y square plus x plus I dot y is equal to 3 plus I. Now x and y are real number, so root over x square plus y square is also a real number, and so root over x square plus y square plus x is also a real number. So this is a real part, this is imaginary part. In the right side also, this is real part dot 1, this is imaginary part. Now equate now equality, just you will get root over x square plus y square plus x is equal to 3 and y is equal to 1. Just put y is equal to 1 here, you will get the value of x, and when you will find the value of x, just put here, you have to find mod of z. Value of y is you have already got it, and now find x from this equation, and you will just need to put here and you will find mod of z. So mod of z a पे 5/3 आएगा, that is option B. Do it by yourself, try it. इतना ही करेंगे हम, बस हिंट प्रोवाइड करेंगे, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का काम आपको खुद करना है, because you are the warrior in the fight. So the next question, here also it's given a equation z bar is equal to I into z square. Z bar is conjugate of z. Okay, so what is the question actually? What it says? It says that the area of the polygon whose vertices are the non-real roots. Here important thing is non-real roots. So maybe real roots are also coming, maybe real root भी आ सकता है, but आपको non real root से जितना भी जो polygon बना है, मतलब बनेगा, शायद वो triangle बन सकता है, वो square भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है. So just you need to find the area of that polygon, okay, using that vertices. So simply put here z is equal to x plus iy. Okay, then z bar is equal to x minus iy. So put it there. Z bar, that is x minus I dot y is equal to I into z square x square minus y square plus I into 2xy.
ओके दिस फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको दो इक्वेशन मिलेंगे। लाइक इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है -2xy प्लस i इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ से आप इक्वेट करोगे तो आपको एक साइड से मिलेगा x इज इक्वल टू -2xy एंड -y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, these two equation you will get. Find two unknown, that is x and y. Okay, so from the left equation you will get x equal to 0 or y equal to -1. Now put these two values in right hand side equation. You will get different values. Like first, if you put x equal to 0, you will get y is equal to 0 and y is equal to 1. So y equal to 0, that means यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, that is 0 प्लस i इंटू 0, that is 0. और यहीं पे 0 प्लस i इंटू 1, that is i. Here the complex number is 0 and here it's i. And from the right hand also, if you put y is equal to -1, then you will get x is equal to √3/2 and x is equal to -√3/2. So यहीं से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है, that is real part is √3/2 plus minus, imaginary part is -1/2. Okay, this one, and from there it's -√3/2 minus i/2. Well, now see the question. There is non-real roots. 0 is not real nor non-real, nor real nor imaginary. So 0 will be excluded, but this 3, this is I into 1, this is imaginary, this also and this also. So you have to find the area of the polygon whose vertices are these 3. Okay, now let's define. Okay, let's draw the polygon here. Here will be a triangle. So first one is 0, i. I is somewhere here, 0, i. Second one is √3/2 minus √3/2, somewhere get 1.78, like here, √3/2 and half niche here, √3/2 comma minus half. In the same way, this point here minus √3/2 minus √3/2 comma minus half. Now you have to find the area of this triangle. Okay, simply half into, so area A is equal to half into bhumi, that is base into height. Height is here is 1 and this is half, so 3/2. Base is √3/2, 2 into √3/2, get 3√3/4. I hope it's visible. It's 4. Okay, 3√3/4. So the area of the polygon whose vertices are non-real roots of the equation z bar is equal to I into z square is 3√3/4. I hope it's clear. Clear नहीं है तभी कोई बात नहीं, दोबारा देख लीजिएगा. Okay, try it by yourself
once also. Now we will move to next question. Okay. Well, our next question is the question number 15, and it came in advance 2022. Okay. Let z bar denote the complex conjugate of a complex number z, and I is equal to root over minus 1. In the set of complex number, the set of distinct roots of the equation z bar minus z square is equal to I into z bar plus z square. इसका डिस्टिंक्ट रूट्स निकालना है. कितना डिस्टिंक्ट रूट्स है वही जस्ट बोलना है, रूट्स निकालना भी नहीं है. ओके, सो in this type of question you have to use the properties of mod argument here. Okay, but here it's a specific question, and here we will use the mod. Okay, the properties of modulus which I have taught you. Yeah, so let's do it. z bar दोनों एक साइड में लेकर 1 minus I is equal to I 1 plus I into z square. Now taking mod in both sides. Okay, taking mod in both sides. And we know that mod is distributive over multiplication and division. Here it's multiplied, so just divide it. Now this is root 2, this is also root 2, so these things will eliminate in the both side. Clear? So now mod of z bar is equal to mod of z square. Okay, mod of z square. Now from this another formula of modulus, power ऊपर चला जाता है, mod of z square. Now mod of z and mod of z bar is same, we know this, right? Mod of z is equal to mod of z bar. याद है ना ये? बिल्कुल. So यही पे अगर इसको हम लोग यूज करेंगे तो क्या मिलेगा अल्टीमेटली? यही से दोनों साइड से mod of z कॉमन लेंगे, so mod of z minus 1 is equal to 0. so mod of z या तो 0 होगा और mod of z is equal to 1. ये हो नहीं सकता क्योंकि mod of z is a, क्या हो सकता है, mod of z is a positive quantity, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे. तो mod of z is equal to 1. Now here's a different formula comes in mod of z. We know that if mod of z is 1, then z bar into z is also 1. एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है. ओके, सो यही से हम लोग डायरेक्ट z bar is equal to 1 by z लिख सकते हैं. इसी को ही निकालना था, इसीलिए इतना सारा चीज जो हमने किया. So from this, okay, from this actually यही पे जो था z bar into 1 minus I is equal to 1 plus I into z square. So z bar की जगह हम लोग 1 by z लिखेंगे, तो 1 by z उस साइड चला जाएगा. 1 minus I by 1 plus I is equal to z cube. और थोड़ा बहुत स्टेप जैम है, उतना आप लोग समझ सकते हो, IITN हो. ओके, सो यही से कितना इक्वेशन मिलेगा, सॉरी यही से 3 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे. प्लस 1 from where? Here. तो टोटल डिस्टिंक्ट रूट्स कितना है? 3 plus 1, that is 4. So 4 is the answer. Okay, I hope it's clear. यहाँ पे हम लोग mod यूज किए. ओके, यहाँ पे mod हम लोग
यूज किए, उसके बाद ये जो चीज, कुछ फॉर्मूलाज, कुछ प्रॉपर्टी सब लोग को याद रखनी है, जैसे मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड बार होता है, इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ जेड होता है, इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ जेड बार। इन चारों का मॉड वैल्यू सेम होता है। उसके बाद अगर मॉड ऑफ जेड 1 होता है, एंड देन इन दैट केस जेड बार डॉट जेड इज इक्वल टू 1। ये कहाँ से आ रहा है एक्चुअली? ये ऐसा होता है, जेड बार इंटू जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड की वैल्यू 1 है, इसीलिए ये 1 होगा। उसके बाद मॉड ऑफ, इसके बाद जेड बार इज इक्वल टू 1 by z, and just to simply put here you will get the degree of this equation is 3, so 3 real roots, 3 distinct roots, and plus 1 from that mod of z is equal to 0 from that 1. So yeah, I hope it's done. थोड़ा बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकें। Okay, another problem is, let z1 and z2 belongs to complex number such that z1 bar is equal to I z2 bar and argument of z1 by z2 bar is equal to 5. Then find argument of z1 and argument of z2. Well, here also it's a equation, z1 bar is equal to I z2 bar. हमें आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है. It means we have to use the properties of argument here. Like in previous question, we used properties of modulus, but in this case we will use properties of argument. So simply put taking argument in both sides, then you will get argument of z1 bar is equal to argument of I plus argument का properties शायद याद होगा, simply like the properties of log. Okay, now from here you will get minus argument of z1 is equal to argument of something which lies in positive y-axis or positive imaginary axis is pi by 2 minus argument of z2. This is equation A, and from that argument of z1 by z2 bar is equal to pi. यही से भी आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, that is argument of z1 minus argument of z2 bar is equal to pi. अब argument of z2 बार को हटाना है तो यहीं पे प्लस आ जाएंगे क्योंकि एक माइनस आता है. This is equation B. So from A and from B, you will get two unknown and two equation. You will find argument of A and argument of B. Yes, this is the question section. बाकी आप लोगों को घर में करना है. इसके बाद हम लोग different topics like De Moivre's theorem, cube root of unity, nth root of unity, इसको start करेंगे. Okay, before going to the next topic, that is different forms of complex number and then De Moivre's theorem, you should know something about Euler's identity. Well, cos theta plus I sin theta is equal to q to the power I theta. This is Euler's identity. You should remember because we will use this frequently. Okay, बहुत ही interesting formula है ये. Okay, now we know that cos square theta plus sin square theta is equal to 1, right? Yes. अच्छा, दो तीन चीज़ यहीं पे याद रखना है. यहीं पे प्लस है साइन के आगे, तो यहीं पे भी प्लस है. ओके, I multiplied with sin, not cos. Okay, then only we will use this e to the power I theta. Now this प्लस को अगर हम लोग उठाएंगे, एक माइनस आई स्क्वायर ऐड कर रहे हैं. ओके, नाउ cos स्क्वायर थीटा माइनस
I square sin square theta. It's a square minus b square. You will get it cos theta plus I sin theta and cos theta minus I sin theta. I hope you have understood that why we have done this. Okay. Now cos theta plus I sin theta is यही से e to the power I theta into हम लोग एक्चुअली cos थीटा माइनस आई साइन थीटा के वैल्यूज वायलर्स फॉर्म में जस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो इसको अगर दूसरी साइड में लेके चलेंगे तो e to the power माइनस e to the power I माइनस थीटा. ओके, ये दूसरा फॉर्मूला है. एक तीसरा और चौथा भी आ सकता है यही से, लाइक साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा. तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई से मल्टीप्लाइड, मतलब साइन थीटा आई इज मल्टीप्लाइड विद साइन, राइट, बट यहाँ पे उल्टा है. तो इसको जस्ट चेंज कर लेते हैं हम लोग. तो कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करें और साइन को कॉस में कन्वर्ट करें तो साइन थीटा इज नथिंग बट कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड प्लस आई. कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा. नाउ थीटा की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा आ रहे हैं आप. सो जस्ट ई टू द पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा. You just to remember like this. Okay, and one more thing, जब यहाँ पे माइनस आएंगे like sin theta minus I cos theta is equal to how much? Simply put here, same चीज जैसे पहले किया वैसे ही करना है इसको भी. cos pi by 2 minus theta minus of sin pi by 2 minus theta. Now look at, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव साइन है पर यहाँ पे माइनस साइन है. सो माइनस को हम लोग जस्ट अंदर घुसाएंगे तो क्या होगा, cos of pi by 2 minus theta. माइनस को अगर अंदर लेके चलेंगे तो यहाँ पे प्लस होगा sin of थीटा माइनस पाई बाई 2 होगा, राइट, थीटा माइनस पाई बाई 2. ना यहीं पे भी अगर हम लोग माइनस कॉमन लें, क्योंकि दोनों थीटा सेम होनी चाहिए, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, यहीं पे प्लस होगा. अब वी ऑल नो दैट कॉस माइनस को खा जाता है. सो यहाँ पे सिंपली थीटा माइनस पाई बाई 2, इस माइनस को हम लोग गायब कर सकते हैं क्योंकि कॉस के टर्म में ये माइनस गायब हो जाता है. थीटा माइनस पाई बाई 2 e to the power I theta minus pi by 2. Okay, these four formulas you have to remember. These are important, and yes, these are important. Okay, now हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे. Like for example, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है I इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग ऑयलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे. तो 0 प्लस I into 1. नाउ दिस इज इक्वल टू cos पाई बाई 2. cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है और sin पाई बाई 2 की वैल्यू 1 है, प्लस I sin पाई बाई 2. दोनों एंगल सेम है, ये जो प्लस है I के साथ मल्टीप्लाइड साइन फॉर्मेट है. So we just need to write e to the power I pi by 2. Okay. Another example, अगर -1 को लिखा जाए तो इसको ऑयलर्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है अब खुद करके देखिए. लाइक cos पाई की वैल्यू -1 प्लस I sin पाई की वैल्यू 0 है. -1 सिंपली क्या है, -1 plus I into 0. Real part is -1 and imaginary part is 0. तो इस हम लोग क्या लिख सकते हैं, e to the power I into I.
सो e टू द पावर आई पाई इज इक्वल टू -1। ये इसका ऑयलर फॉर्मेट है -1 का। ओके, एक चीज़ आप लोग पहले भी किए होंगे, उसका जस्ट सिंपलेस्ट वे में अगर ऑयलर्स फॉर्म हम लोग यूज़ करेंगे तो कैसे उसको बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। लाइक वी नो दैट cos θ1 प्लस आई sin θ1 इंटू cos θ2 प्लस आई sin θ2 डॉट 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 cos θn प्लस आई sin θn is equal to, we know that cos θ1 plus θ2 dot 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 θn plus I sin θ1 plus θn, राइट। हम लोग ये कॉरोलरी जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं। ये कैसे आया है जस्ट सिंपली देख लीजिए। ऑयलर्स फॉर्म यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है, इसीलिए इसको यहीं पे हम लोग देखेंगे। ये मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट e टू द पावर आई θ1 इंटू दिस इज e टू द पावर आई θ2 डॉट e टू द पावर आई θ3 डॉट डॉट ऐसे चल रहा होगा e टू द पावर आई θn। दोनों का बेस सेम है तो पावर हम लोग ऐड करेंगे, e टू द पावर आई θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस डॉट 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 θn। अब e टू द पावर आई इंटू थीटा, e टू द पावर आई थीटा, इसको हम फिर से पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो cos θ1 प्लस θ2 डॉट 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 θn प्लस आई sin θ1 प्लस θ2 डॉट 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 θn। हाँ, लाइन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है बट इट्स ओके, समझ सकते हो अपना। तो इसका हम लोग प्रूफ हो चुका है। हाँ, अब इसको नॉर्मली एक तरीका है थोड़ा शॉर्ट में लिखने का, सिस थीटा, ओके, θ1 प्लस θn। तो cos θ1 प्लस आई sin θ1 को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा लिखेंगे। क्लियर? I hope it's clear up to now. Okay, now we will discuss the three different forms of complex number. There are three forms. First one is which we have already done, that is z is equal to a plus iv. It's called Cartesian form. Second one is a polar or trigonometric form, like z को हम लोग a cos theta plus b sin theta इस फॉर्म में अगर लिखेंगे so that will be called as trigonometric or polar form. And the third is Euler form. Okay, so first one, Cartesian form. Cartesian form. Okay, now this is x, this is y. We know that z is equal to x plus iy, right? But this is x coordinate, this is y coordinate, this is x comma y. Now we know that this is the distance from the origin 0 comma 0 from that coordinate x comma y is called mod of z, right? And the angular distance from horizontal positive x-axis is called theta or nothing but argument। इसी को यूज करके हम लोग पोलर और ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, ओके, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। इसी को हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन, इसी को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? दिस विल बी कॉल्ड एज मॉड z cos थीटा, इसका सेगमेंट है, एंड दिस अप टू दिस मॉड z sin थीटा, राइट? हाँ,
just put it here. So z is equal to so z is equal to x के जगह पे हम लोग लिखेंगे x कोऑर्डिनेट, that is x equal to, and this is y equal to, x की जगह लिखेंगे हम लोग mod z cos theta plus I mod z sin theta. तो z कॉमन लेते हैं दोनों साइड से, so mod z cos theta plus I sin theta. This is called trigonometric और polar form. So दो नंबर पे लिखा polar और trigo form. And the third one is Euler form. Euler form में क्या, इसी को जस्ट जैसे यही से हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, e टू द पावर आई थीटा, एज सिंपल एज दैट. यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट एंड mod z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, दैट इज मॉड्यूलस. ओके, सो Euler फॉर्म में e टू द पावर आई थीटा के साथ जो मल्टीप्लाइड वर्जन में रहता है, फॉर्मेट में रहता है, उसी को हम लोग मॉड बोलेंगे. लाइक अगर कुछ ऐसा रहता है कि z इज इक्वल टू 2 sin pi by 6 e to the power I 2 pi by 3. So here theta will be 2 pi by 3 and modulus is equal to 2 sin pi by 6. Okay, theta means argument of that z. These three formats. Now we will move to our next topic, that is de Moivre's theorem. Well, एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले. एक्चुअली 3-4 क्वेश्चंस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द मॉड एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to I minus 1 by cos pi by 3 plus I sin pi by 3. इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं. एक तो z को दोनों ही कार्टेशियन फॉर्मेट में लेके जाओ, दोनों I minus 1 by cos pi by 3 that is half plus I sin pi by 3 that is I into root 3 by 2. इसको अब हम नीचे I को नहीं रखना चाहते, इसीलिए कॉन्जुगेट के थ्रू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे. ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है. इसी की जगह हम लोग अभी जो Euler फॉर्म सीखे हैं उसी में कन्वर्ट करके इसका वैल्यू निकालेंगे. ओके, सो सिंपली पुट z इज इक्वल टू, सो Euler फॉर्म के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना जरूरी है, ऊपर वाला नीचे वाला तो ऑलरेडी Euler फॉर्म में दिया हुआ है e टू द पावर I pi by 3, बट ऊपर वाले के लिए आपको सबसे पहले मॉड, उसका मॉड वैल्यू चाहिए एंड उसका आर्गुमेंट चाहिए. I minus 1 इसका मॉड वैल्यू, सो I minus 1 इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट 2. इसका आर्गुमेंट तो आप देख के निकालना चाहिए. इट्स इन I minus 1, that means it's nothing but minus 1 plus I into 1. It's in second quadrant, right? Yes, and tan inverse of mod 1 by minus 1 is 1, it is pi by 4. Now second quadrant है तो pi minus pi by 4 होगा. So argument of that complex number I minus 1 is equal to pi minus pi by 4. शायद भूल गए होंगे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा एज इट इज बैठ जाता है tan इनवर्स mod ऑफ y by x. सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो आर्गुमेंट जो होता है पाई माइनस थीटा होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा माइनस पाई होता है. द फोर्थ क्वाड्रेंट में इज एज इट इज माइनस थीटा. ओके, इन सारी चीज़ को याद रखना है ताकि हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. तो ऊपर वाले को, सो दोनों को अगर हम लोग Euler's फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड रूट 2 e टू द पावर I 3 pi by 4, राइट. सबसे पहले
उसका मॉड वैल्यू देन e टू द पावर i इंटू थीटा आर्गुमेंट वैल्यू, ओके बाय इसको ये ऑलरेडी दिया हुआ है e टू द पावर i पाई बाई 3. नाउ जस्ट सिंपली कैलकुलेट रूट 2 इंटू e टू द पावर i 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3. इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, नीचे 12 आएंगे, ऊपर में 9 माइनस 4 5 पाई बाई 12. अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ तो यही होगा, ओके. सो रूट 2 इंटू e टू द पावर i 5 पाई बाई 12 z इज इक्वल टू. नाउ कंपेयर इट विद दिस फॉर्म. इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो मॉड z वी विल फाइंड रूट 2 एंड थीटा आर्गुमेंट इज 5 पाई बाई 12. इट्स इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, पाई से कम है एंड वी हैव द प्रिंसिपल रेंज ऑफ आर्गुमेंट इज माइनस पाई ओपन टू प्लस पाई क्लोज. दिस कम्स अंडर दिस रेंज. सो इसको वैसे ही एज इट इज बैठा देंगे, ओके. प्लस माइनस वो एडजस्टिंग फैक्टर लाने का कोई ज़रूरत नहीं है. एक दूसरे क्वेश्चन है. सबसे पहले ये तक कंप्लीट कर लो आप. क्वेश्चन नंबर 19. The real part of the complex number 1 minus I to the power I. इसका रियल पार्ट आप लोगों को निकालना है. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, टोटल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट आपको निकालना है. सॉल्यूशन. इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको वायलर फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, उसमें आसानी होता है. सो 1 माइनस आई हम लोगों ने अभी किया है ना, नो 1 माइनस आई नहीं किया. तो सबसे पहले 1 माइनस आई को इसी का मैग्नीट्यूड क्या है रूट 2 और थीटा करेंगे तो 1 माइनस आई दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट. तो इसका माइनस पाई बाई 4 होगा, माइनस पाई बाई 4 एज इट इज बैठ जाएगा थीटा. सो इसको अगर हम लोग वाइलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 e टू द पावर i इंटू माइनस पाई बाई 4 टू द पावर i, राइट. यस. So now root 2 to the power I into e to the power I square into minus pi by 4. I square minus 1 तो pi by 4 के साथ नलीफाई हो जाएगा माइनस वाला पोर्शन. So we will get e to the power pi by 4. This is a real number, e to the power something. I से साथ जोड़ा नहीं किया. Now the problematic is root 2 to the power I. राइट. यस, सही तो हो रहा है ना ये. यस, रूट 2 टू द पावर आई है, सॉरी ये माइनस आई है, इट्स माइनस आई, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स माइनस आई. तो यहीं पे भी माइनस आई होगा, ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, ओके. सो ये रियल नंबर है ये. जस्ट इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है अब. e टू द पावर माइनस पाई बाई 4 एज इट इज ये रहेगा इंटू. नाउ एक चीज यहीं पे हम लोग ln e रख देते हैं. लॉग का जस्ट सिंपल फार्मूला हम लोग यहीं पे यूज करेंगे ln e. नाउ हम लोग जानते हैं ये e और दिस बेस ये इंटरचेंज करते हैं, तो जस्ट इंटरचेंज करवा देते हैं. माइनस आई ln रूट 2. क्लियर. यस.
यस, सो e टू द पावर माइनस 5/4 e टू द पावर i को सॉरी -1 को यहाँ पे जो -1 इसको हम लोग उसके ऊपर लेके चलते हैं i ln 2 to the power -12, right? Yes, yeah, I guess it's going well. Log का form, yeah, I was right. So e to the power -5/4, इसको अगर हम लोग अभी पोलर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रियल पार्ट. सो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा में cos थीटा वाला पोर्शन हमें निकालना है. सो e टू द पावर i इंटू दिस. सो इसको cos थीटा लिखें, cos ऑफ ln 2 to the power -12 प्लस i साइन ऑफ ln 2 to the power -12. So real portion is, this is the real part of 1 minus I to the power -i. So real part लिख देते हैं. अगर इमेजिनरी पार्ट बोलता तो सिर्फ हम लोग ये वाला पोर्शन लिख देते हैं. ओके, सो रियल पार्ट क्या है तो फिर e to the power -5/4 cos of ln 2 to the power -12. और हम लोग जानते हैं कि अगर पावर है तो ln से पहले आ जाता है, तो -12 पहले आ जाएगा. That's all. This is the final answer. I hope it's clear. Yes, क्लियर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, रिवाइंड करके दोबारा देख लेना. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20, ये मेंस 2023 में आया था शायद. इफ 3 प्लस आई साइन थीटा बाई 4 माइनस आई कॉस थीटा where theta belongs to 0, 2 pi is a real number, then the arguments of sin theta plus I cos theta is. Okay, 3 plus I sin theta by 4 minus I cos theta is a real number. That means जब इसको तुम a plus I b फॉर्मेट में लेके जाओगे, you will get a real part and imaginary part. बोला है real number, it means the imaginary portion should be equal to 0. From that equation you will get 2 or 3 or maybe more than 3 some values of theta belongs to that range 0, 2 pi के अंदर थीटा की वैल्यू मिलेंगे. ओके, उस थीटा के वैल्यू यहीं पे बैठाना है. कहाँ पे बैठाना है, क्या बोला गया, द आर्गुमेंट्स ऑफ दिस, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका आर्गुमेंट साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करना है क्योंकि ये वाला फॉर्म ये यहाँ पे साइन रहता है, राइट. तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होंगे, cos π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन π/2 माइनस थीटा. तो ये वही चीज़ है e टू द पावर i π/2 माइनस थीटा. सो इस इक्वेशन से जो थीटा की वैल्यू निकलेगा, चाहे वो 2 निकले, 3 निकले या 4, जितना भी वैल्यू निकले, मान लेते हैं कि थीटा की एक वैल्यू जो है वो है π/3. यस, π/3 वैल्यू, π/3 बिलोंग्स टू 0, 2 pi, मान लेते हैं कि एक वैल्यू है. तो इसका आर्गुमेंट क्या है, इसका आर्गुमेंट क्या है, π/2 माइनस थीटा. तो इसका जो टोटल आर्गुमेंट, जितने भी आर्गुमेंट्स प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में है, वो सारे चीज आपको निकालना है. -π ओपन टू +π क्लोज्ड टाइम, दैट डिपेंड्स ऑन दिस थीटा, एंड दिस थीटा यू विल गेट फ्रॉम दिस. ओके, तो मान लेते हैं कि एक वैल्यू π/3, तो आर्गुमेंट 1 क्या होगा, π/2 माइनस π/3 इज इक्वल टू π/6. 90 डिग्री से 60 डिग्री माइनस करके π/6 30 डिग्री मिलता है. ओके, दिस यू विल गेट. ऐसे करके जितना भी आपको आर्गुमेंट्स मिले
सारी चीज़ निकालना है जो इस थीटा के ऊपर बेस कर रहे हैं। थीटा की जितने मल्टीपल वैल्यूज बैठाना है यहीं पे एंड यू विल फाइंड। टेस्ट योरसेल्फ हियर, टेस्ट योर प्रोग्रेस हियर। ये सचिन सर से इंस्पायर्ड है, उन्हीं का ही क्लास एक्चुअली सारी चीज़। ओके, नाउ कुछ चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज 1 प्लस e टू द पावर I थीटा, 1 प्लस e टू द पावर I थीटा। कुछ चीज़ इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे एक्चुअली, तो इसीलिए ये होता है 2 cos थीटा बाई 2 e टू द पावर I थीटा बाई 2। ओके, कैसे आ रहे हैं? ऐसे, जैसे 1 प्लस इसको अगर एक्सपेंड करें तो cos थीटा प्लस I sin थीटा। नाउ दिस इज, इसको दोबारा एक्सपेंड करो, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस I 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। नाउ कॉमन लेते 2 cos थीटा बाई 2, so you will find cos theta by 2 plus I sin theta by 2. Now cos theta by 2 plus I sin theta by 2 is equal to e to the power I theta by 2. So 2 cos theta by 2 into e to the power I theta by 2. Okay, so ये पहला है, पहला रिजल्ट है। दूसरा रिजल्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, 1 माइनस e टू द पावर I थीटा, माइनस है, इसको जस्ट sin थीटा बाई 2, 2 sin थीटा बाई 2 e टू द पावर I थीटा बाई 2। ओके, ऐसे 2 3 4 फार्मूलाज हैं आपको याद रखनी है। इसको भी सेम तरीके से इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके दोबारा थीटा बाई 2 एंड थीटा इस ऐसे फॉर्मेट में लेके आओ। ओके, यस। इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये जो खतरनाक रिजल्ट हमने लिखे हैं इसके ऊपर बेस करके हैं कि इफ z इज इक्वल टू 1 प्लस cos 6 पाई बाई 5 प्लस I sin 6 पाई बाई 5 होता है z का वैल्यू, देन फाइंड मॉड ऑफ z एंड एम्पलीट्यूड ऑफ z। इसको पहले इसी फॉर्मेट में लिखो, वायलेट्स फॉर्मेट में, उसके बाद सिंपली यूज करो ये फॉर्मूला। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? सो z इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर I 6 पाई बाई 5, e to the power I 6 pi by 5. Now use this formula, 2 cos theta by 2, that is 6 pi by 10, that is 3 pi by 5 into e to the power I 3 pi by 5. Now here one thing you have to remember, which I taught earlier in the beginning of modulus or argument classes, when mod z should not be equal to negative. Okay, mod z is always positive, but here look at this, Euler's form में हम लोग क्या जानते हैं, mod z e to the power I theta, then this portion is mod, अगर कंपेयर करेंगे, and theta is this portion. It's okay, it comes under principal value of theta argument, amplitude. But this cos 3 pi by 5, cos 3 pi by 5 is a negative quantity. That is, in cos 3 pi by 5, pi by 5 is, I guess, 36, 3 pi by 5, cos 108 degree. Cos 108 degree lies in second quadrant, and second quadrant cos is negative. So the whole thing is negative. So this quantity is negative, and we know that mod z is मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहीं से एक तो 2 केस हो सकता है। पहला, डायरेक्टली mod z तुम लोग ऐसे लिख दो, cos 3 pi by 5 and
theta, that is amplitude is 3 pi by 5. बट ये नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो इसको हमें सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में है ये जो एंगल, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं। सो 2 cos, सो नाउ cos, सेकंड दूसरा जो केस है वो वैसा है कि cos 3 pi by 5, so pi minus 2 pi by 5, pi minus 2 pi by 5 is equal to minus cos of 2 pi by 5. Now this quantity cos of 2 pi by 5 is positive quantity, cos 72 degree positive, but minus आ रहा है। ओके, सो यही से हम लोग डायरेक्टली मूव करेंगे। क्या हो रहा है इसमें, इंक सही से क्यों नहीं आ रहा है? ओके, सो इसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें। सो इसके जगह पे माइनस, सो माइनस 2 cos, माइनस 2 cos 2 pi by 5 into e to the power I 3 pi by 5। now ये जो -1 मल्टीप्लाइड है इसको हम फिर से ऑयलर्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। -1 is equal to, we know that e to the power I pi, isn't it? Yes. So 2 cos 2 pi by 5 into e to the power I pi। ये जो -1 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, इसी को हम लोग ऑयलर्स फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, यस, e to the power I pi into e to the power I 3 pi by 5। now दोनों को ऐड करो, so 2 cos 2 pi by 5 into, इन दोनों को ऐड करेंगे तो e to the power 8 pi by 5 I guess, e to the power I into 5 और 3 8 pi by 5। now it's greater than the principal range of our argument। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसको रिड्यूस करना है। पाई से ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग वो जो एडजस्टिंग फैक्टर था +-2n पाई, तो यहीं पे हम लोग -2 पाई माइनस करेंगे। इट्स जस्ट 8 पाई बाई 5 माइनस 2 पाई करेंगे तो -2 पाई बाई 5। ओके, so simple final form 2 cos 2 pi by 5 into e to the power I minus 2 pi by 5। ये था हम लोगों का फाइनल ऑयलर फॉर्म। तो यही से हम लोग क्या लिखेंगे, तो मॉड ऑफ z is equal to 2 cos 2 pi by 5 and amplitude of z ampz minus 2 pi by 5। okay, so this is the final answer। तो ये वाला प्रोसेस सही है और ये वाला प्रोसेस गलत है। जब भी ऐसे कुछ आए ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म आए फाइनल में, मॉड के z इज इक्वल टू समथिंग ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉस, तो क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट है में उसको बस देख लेना है ताकि आप लोग वो माइनस वाला चीज़ को अवॉइड कर सकें। आई होप इट्स क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 मेंस 2020 में आया। द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 प्लस आई कॉस 2 पाई बाई 9 बाई 1 प्लस साइन 2 पाई बाई 9 माइनस आई साइन आई कॉस 2 पाई बाई 9 टू द पावर होल क्यूब। ओके, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपको उसी फॉर्मेट में लेके जाना है इसको, ऑयलर फॉर्मेट में। तो साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा है, पर इसको आप लोगों को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मतलब e टू द पावर आई पाई बाई 2 माइनस थीटा, उसी के फॉर्मेट में लेके जाना है, ऊपर वाला और नीचे वाला भी। जब आएंगे 1 प्लस e टू द पावर आई पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9। अब इसी चीज़ को वो जो खतरनाक वाला फॉर्मूला था 1 प्लस
e टू द पावर आई थीटा, उसको लिखेंगे 2 cos थीटा बाई 2 इंटू साइन, सॉरी 2 cos थीटा बाई 2 इंटू ई टू द पावर आई थीटा बाई 2। ऐसी चीज़ ऊपर में भी करना है और नीचे में भी करना है। इसके बाद 2 cos वो थीटा बाई 2 वो वाला पोर्शन कट जाएगा और ई टू द पावर वाला पोर्शन रह जाएगा। इसको अगर हम लोग दोबारा वैसे ही प्रोसीड करना, आगे चल के धीरे धीरे आराम से आ जाएगा ये वाला जो वैल्यूज। ओके, इसको घर में करना है। नाउ लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला हम लोग करेंगे। ओके, तो पहले क्या करना है इसमें साइन को कॉस में कन्वर्ट करना है, कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9 उसमें भी करना है। करने के बाद वही वाला ई टू द पावर आई पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 9। अब 1 प्लस इतना आ रहा है तो 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट, तो पाई बाई 4 माइनस 2 पाई बाई 2 इंटू 9 ऐसे करना है और ई टू द पावर सेम वैल्यू। ओके, ऊपर नीचे सेम आएंगे, ये वाला पोर्शन कॉस वाला कट जाएगा और ये वाला रह जाएगी, इसको क्यूब करना है। ओके, नाउ लॉग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, वी नो दैट z इज इक्वल टू मॉड z, ऑयलर फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, ई टू द पावर आई थीटा, राइट। अब दोनों साइड ln ले लेते हैं, मतलब log बेस टू द पावर e, तो ln ले लेंगे तो दैट इज ln mod z प्लस ln e टू द पावर आई थीटा, इसी को ln mod z प्लस आई थीटा बाहर आ जाएंगे ln e। अब ln e के वैल्यू 1 है, तो ये है log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। ओके, जहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये रियल पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है इमेजिनरी। तो log ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर रियल पार्ट इज ln mod z and imaginary part is nothing but theta। ओके, यही चीज़ आपको याद रखना है। नॉर्मली क्वेश्चन में नहीं आते हैं बट या अगर आए तो इतना ही करना है। ओके ओके, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस क्लास and we will move in the next chapter, that is de Moivre's theorem and later then cube root of unity and then nth root of unity and बहुत सारे questions करेंगे उसके बाद। ओके, या आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। या ये वाला टी शर्ट काफ़ी अच्छा लगता है बहुत ही महंगा है। मेरा जितना भी टी शर्ट्स है इन सब में यही वाला सबसे महंगा है। मेरे मम्मी को बहुत पसंद है ये, और थोड़ा सा अटकता है पर फिर भी ठीक है। ओके, सो आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, आई मीन रिकॉर्डेड क्लास ही है। सो 7th नंबर क्लास में आएंगे तो वो सारी चीज़ कवर अप करेंगे। ऐसे धीरे धीरे क्लास रिकॉर्ड करते करते कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक कॉम्प्लेक्स नंबर और 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 क्लासेस, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। 1 घंटे का ही होगा लगभग क्लासेस, और उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। विद इन 3 to 4 मंथ्स पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक। समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, अपना दिमाग थोड़ा बहुत यूज़ कीजिए। ओके, बाय।